Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, first year class. We are doing chapter 5, that is network communication and protocols. Up till now, we have discussed different concepts related to network communication. We have discussed different components which involve in network communication or in data communication. We also discussed different communication medium which are used to connect different devices at near places, and if you want to connect computers which exist or which are at remote areas. Today we will discuss two topics, that is communication devices and network architectures. Up till now, we have discussed the different components participate in network communication or in transferring data from one place to another place. For this, if we want to connect two computers directly, then it is possible that we need only a wire, which will be twisted per cable if we are connecting computers which are located nearby, and we can connect them directly. But if you want to connect more than two computers, let's say 20 or 50 or even 10 computers, then there must be an intermediate device which will be used to connect all the computers and will connect and will act as bridge to transfer data between them. Because each computer network will have only one Ethernet card, और एक ईथरनेट कार्ड के ज़रिए से हम एक कंप्यूटर को सिर्फ एक ही दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है तो एक ऐसी डिवाइस होना ज़रूरी है ताकि हम जो भी वायर यूज़ कर रहे हैं उसका एक पार्ट जो है हम कंप्यूटर के ईथरनेट कार्ड में या मॉडेम में लगाएं और दूसरी वायर का जो एंड है हम उस कम्युनिकेशन डिवाइस के अंदर लगाएं ताकि डेटा उनके दरमियान फ्लो हो सके. Such devices are called communication devices. There are many communication devices which can be used to connect more than two computers for sending and receiving data, like hub, switch, router, and gateway. Every communication device has its own features and characteristics, but generally if you want to connect computers at single place, like in an office, in a university, or at school, then we use hub or switch. On the other hand, if you want to connect computers on remote areas which are located far away from one network, or we can say if you want to connect two networks located on two totally different locations, then router and gateway is used. First communication device that I'm going to discuss is hub. Hub is a connectivity device, and it means it connects devices which are part of a network, but it is used to connect computers in a local area or in a small network, which is called local area network. Or we can say that hub is used to connect computers which are part of a single network, and a single network can be of a university, it can be of an office, it can be of a school. So hub is used to connect computers at single place, but one thing that is true for the hub is that hub is considered as non-intelligent device, because when data is transferred through hub, it transfers data to all the devices which are connecting through the hub. होता क्या है कि जब एक कंप्यूटर डेटा किसी एक एग्जैक्टली दूसरे कंप्यूटर को सेंड करना चाहता है, या एक कंप्यूटर रिक्वेस्ट सेंड करता है किसी एक कंप्यूटर को कि उसको कोई फाइल या कोई भी रिसोर्स चाहिए, तो हब क्या करता है,
वो डेटा या वो रिक्वेस्ट जो है वो तमाम कंप्यूटर्स को फॉरवर्ड कर देता है, और विदाउट एनी इंस्पेक्शन, विदाउट फाइंडिंग कि डेटा किसी एग्जैक्टली एक कंप्यूटर के लिए है, और तमाम कंप्यूटर्स को डेटा सेंड कर देता है. इट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग. ठीक है, एंड इट मींस देयर इज नो इंटेलिजेंट फीचर which are part of हब कि जो इंस्पेक्ट करें कि एग्जैक्टली जिस कंप्यूटर के लिए डेटा है उसी को सेंड किया जाए. डेटा इज सेंड टू ऑल द कनेक्टेड कंप्यूटर्स. अब जिस कंप्यूटर के लिए वो डेटा होता है उसका ईथरनेट कार्ड उसको एक्सेप्ट कर लेता है. रिमेनिंग ऑल द कंप्यूटर्स decline or deny that data, but all the computers have to receive this data. That's why hub is not considered as intelligent device. A hub contains multiple ports like 8 ports or 16 ports, and when computers are connected through hub, one port which is input port can act as output port for the many devices. इसका क्या मतलब है कि जब कोई एक कंप्यूटर डेटा सेंड करता है तो वो जिस पोर्ट के साथ कनेक्टेड होता है वो इनपुट पोर्ट कंसिडर होगी कि उसके थ्रू डेटा रिसीव हुआ है. देन उसी पोर्ट के थ्रू डेटा जो है वो ब्रॉडकास्ट होगा टू ऑल द कंप्यूटर्स व्हिच आर पार्ट ऑफ दैट नेटवर्क. इसलिए हम इसको नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस भी कह रहे हैं. इट मींस कि हब क्या करता है कि जो डेटा वो रिसीव करता है पोर्ट के जरिए से उसको कॉपी करके पेस्ट कर देता है, जिसको हम ब्रॉडकास्ट करना कह रहे हैं, ताकि तमाम कंप्यूटर्स तक वो सिग्नल्स पहुंच जाएं. देन ईथरनेट कार्ड जो कि इंडिविजुअली हर कंप्यूटर के साथ अटैच हुआ होता है वो डिसाइड करता है कि क्या ये डेटा इस कंप्यूटर के लिए है. अगर तो वो डेटा उस कंप्यूटर के लिए होता है. और ये कैसे पता करता है ईथरनेट कार्ड? क्योंकि वो जो डेटा आ रहा होता है जो उसमें डेस्टिनेशन एड्रेस भी होता है. ठीक है, पर ईथरनेट कार्ड बगैर डेस्टिनेशन एड्रेस चेक किए तमाम कंप्यूटर्स को डेटा सेंड करता है. पर ईथरनेट कार्ड जो है जो सीपीयू के पीछे लगा हुआ होता है वो ये चेक करता है कि क्या जो डेटा का डेस्टिनेशन एड्रेस है क्या वो मेरे एड्रेस से मैच करता है. तो अगर वो मैच करता है तो वो डेटा वो कंप्यूटर वो डेटा जो है वो रख लेता है. ठीक है, अदरवाइज जो बाकी कंप्यूटर्स हैं जिनके साथ डेस्टिनेशन एड्रेसेस मैच नहीं करते उनके ईथरनेट कार्ड्स उस डेटा को डिस्कार्ड कर देते हैं. बट ऑल द कंप्यूटर्स हैव टू रिसीव दैट डेटा. So if there are multiple computers which are connected to each other through a main computer which is called server, and if the server is sending some instructions to a specific client, to a specific computer, then hub will transfer this request to all the connected computers. The next communication device is switch. Switch is used in similar way. It works similar way like hub does, that it connects computer in a single that connect computers on a single network or at one place or in multiple buildings of the same place. But there is difference between hub and switch that I will discuss in the next slide. A switch can be with different ports, 16 port, 32 ports, right? But if we want to connect computers which are located on other building, on other floor of the same building, for example अगर हमें 64 या हमें 100 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है और जो स्विच है वो हमारे पास 32 पोर्ट तक के आते हैं या 28 पोर्ट वाले स्विच आते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम 2 या 2 से ज़्यादा स्विचेस जो हैं वो बाय कर लेते हैं और उन स्विचेस को आपस में ट्विस्टेड पेयर केबल के ज़रिए से जो है वो कनेक्ट कर देते हैं. और देन जो कंप्यूटर्स एक फ्लोर पे होंगे वो एक स्विच के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जो दूसरे फ्लोर
के ऊपर कंप्यूटर्स होंगे वो दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट रहेंगे और दोनों स्विच आपस में कनेक्टेड होंगे ताकि डेटा जो है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के ऊपर भी कम्युनिकेट किया जा सके. But they are mostly used to connect computers at one place. But these earlier these switches were also configured to work as routers. और routers की जो functionality है वो हम बाद में discuss करेंगे. One thing is the concept of packets or data packets. Data packets या packets का concept क्या है कि जो भी data एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ जाता है चाहे वो एक नेटवर्क के ऊपर ट्रेवल करे वो डेटा, ठीक है, या एक नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर्स हैं उनमें आपस में वो डेटा शेयर हो या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर डेटा शेयर हो, it is always in packets. Packet is the smallest unit of the data which can travel through devices. अब एक नेटवर्क के अंदर वो कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में यहाँ हब से कनेक्टेड होंगे या स्विच से कनेक्टेड होंगे, लेकिन जब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाएंगे तो देन देयर विल बी राउटर जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. अब हर राउटर को कॉन्फ़िगर किया जाता है कि एक खास साइज का डेटा जो है वो अपने अंदर से या अपने थ्रू जो है वो फॉरवर्ड कर सकता है टू द नेक्स्ट नेटवर्क. अब वो जो स्पेशल या कहना चाहिए स्पेसिफिक अमाउंट का डेटा है दैट इज कॉल्ड पैकेट. अब ये कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया गया है कि अ राउटर विच इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स, अब उसको मल्टीपल नेटवर्क से चूंकि डेटा आ रहा होता है तो वो अगर एक ही साइड का सारा डेटा ट्रांसफर करेगा तो it has to stop the data of coming from other network, राइट. तो इसलिए क्या किया गया है कि डेटा हमेशा जो पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है. ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे डेटा जो है पैकेट्स में डिवाइड होता है. लेकिन द होल डेटा एंड द होल मैसेज इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स और हर यूनिट का जो है वो स्पेसिफिक साइज होता है. फॉर एग्जाम्पल एक फाइल है 520 MB की और उसने ट्रांसफर होना है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की तरफ, तो वो 10 MB या 5 MB के यूनिट्स में जाएगी और वो 10 MB का एक यूनिट है वो क्या कहलाएगा, पैकेट कहलाएगा. अब हर राउटर की कैपेबिलिटी होती है कि वो एक खास साइज का डेटा पैकेट जो है वो फॉरवर्ड कर सकता है टुवर्ड्स द नेक्स्ट नेटवर्क. विद इन नेटवर्क भी यही कॉन्सेप्ट काम कर रहा होता है कि अगर एक नेटवर्क के अंदर भी डिफरेंट कंप्यूटर्स में कनेक्ट होना है और उनके दरमियान डेटा ट्रांसफर होना है और स्विच जब डेटा ट्रांसफर करता है तो वो भी पैकेट्स की फॉर्म में कर रहा होता है. दिस कॉन्सेप्ट was important when we talk that when switch connects multiple computers in a network, तो वो करता क्या है कि जब उसको कोई डेटा पैकेट रिसीव होता है तो एज कंपेयर टू हब वो क्या करता है कि उस डेटा पैकेट के अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करता है. उस डेटा पैकेट के अंदर जो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है वो सिर्फ उसी कंप्यूटर को जो है वो डेटा सेंड करता है. दैट्स व्हाई स्विच इज कंसिडर्ड मोर इंटेलिजेंट देन हब. हब क्या कर रहा था, जब उसको कोई डेटा पैकेट मिलता था तो क्या करता था, तमाम कंप्यूटर्स को ब्रॉडकास्ट कर देता था विदाउट चेकिंग द डेस्टिनेशन एड्रेस. और इसके लिए तमाम कंप्यूटर्स के ईथरनेट कार्ड को उसको चेक करना पड़ता था. ऑन द अदर हैंड एज स्विच इज इंटेलिजेंट या उसके अंदर जो चिप है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस तरह की हैं कि वो क्या करता है कि जो डेटा पैकेट वो रिसीव करता है किसी एक कंप्यूटर की तरफ से जो किसी स्पेशली दूसरे कंप्यूटर के लिए होता है या सर्वर की तरफ से किसी खास क्लाइंट के लिए कोई डेटा होता है तो वो सिर्फ उसी क्लाइंट को भेजता है जिसके लिए सर्वर ने वो डेटा सेंड किया होता है. सो स्विच इज मोर इंटेलिजेंट देन इट मीन्स कि वो जो इंफॉर्मेशन डेटा पैकेट के अंदर होती है वो उसको रीड करता है और वो सिर्फ उसी कंप्यूटर को नेटवर्क के ऊपर डेटा को सेंड करता है. Secondly, sometimes switches are configured
in such a way that they can connect more than one networks as well. It means कि जो switches हैं एक ही नेटवर्क के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के अलावा हम उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, हम उनकी सेटिंग्स कर सकते हैं कि वो एक से ज़्यादा नेटवर्क्स के कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकें। इस तरह से क्या होता है कि जब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र करना होता है स्विचेस में, तो हर डेटा पैकेट को इंस्पेक्ट करते हैं या उसको एग्जामिन करते हैं, ठीक है, और देन सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेसेस के बेसिस पे वो उस डेटा को नेक्स्ट नेटवर्क के अंदर जो है वो फॉरवर्ड कर देते हैं। हम ये नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि कैसे स्विच या राउटर को ये पता चलता है कि मैंने ये डेटा कौन से नेटवर्क में सेंड करना है। अब वो नेटवर्क किसी और शहर में हो सकता है, सेम शहर में हो सकता है, या किसी और कंट्री या किसी और कॉन्टिनेंट में भी हो सकता है। अब राउटर्स और स्विचेस, उन स्विचेस को जिसको हमने कॉन्फ़िगर किया है एक से ज़्यादा नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए, उनको कैसे पता चलता है कि हमने ये डेटा जो है वो किस नेटवर्क को सेंड करना है। एक स्विच एक से ज़्यादा नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर सकता है। Right, the next communication device is router. Router is very important communication device, especially in the world of internet. कंप्यूटर्स को इंटरनेट में कनेक्ट करना विदाउट राउटर इज नॉट पॉसिबल। और एक्चुअली जो मेन फंक्शन है राउटर का या जो डिज़ाइन किए गए हैं राउटर्स, वो उनका पर्पस ये है कि वो दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करें। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम वर्किंग एट स्कूल ऑन अ कंप्यूटर और मैं एक नेटवर्क का पार्ट हूँ और मैं कोई ईमेल करती हूँ या मैं कोई डेटा सेंड करती हूँ किसी को आउटसाइड दैट लोकेशन, और वो लोकेशन सेम सिटी के अंदर भी हो सकती है, किसी और सिटी में वो लोकेशन हो सकती है कि मैं जिस कंप्यूटर को डेटा सेंड करना चाहती हूँ, या वो कंप्यूटर हो सकता है किसी और कंट्री के अंदर लोकेटेड हो। तो देयर विल बी अ राउटर जो मेरे उस डेटा को वहाँ से फॉरवर्ड करेगा टूवर्ड्स माय डेस्टिनेशन computer. So routers are specifically used to connect two networks which may be located nearby or which may be located far away. And router क्या करता है कि जब एक कंप्यूटर से दूसरे नेटवर्क को डेटा सेंड करना होता है, तो वो क्या करता है, बेस्ट पाथ जो होता है वो उसको चूज करता है। इट मीन्स कि लेट्स सी मेरी कोई एक डिवाइस जो है वो वाईफाई के ज़रिए से कनेक्टेड है दुनिया में इंटरनेट को यूज़ करके किसी और नेटवर्क के साथ, और जो ये नेटवर्क और जो मेरा नेटवर्क है उसके दरमियान एक से ज़्यादा पाथ हो सकते हैं, एक से ज़्यादा राउटर्स हो सकते हैं कि जिनके थ्रू डेटा मेरा फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो राउटर क्या करेगा, जो इनमें से जो बेस्ट पाथ होता है, नॉर्मली शॉर्टेस्ट पाथ होता है, वो उसको चूज़ करता है। अगर शॉर्टेस्ट पाथ में के दरमियान ट्रैफिक ज़्यादा है तो वो क्या करता है, फिर ऑल्टरनेटिव कोई पाथ चूज़ करके मेरे उस डेटा को forward करता है towards the destination. This is the feature of router. यहाँ पे आप देख सकते हैं होस्ट कंप्यूटर और ये होस्ट हुए, यहाँ से डेटा सेंड हो रहा है और डिफरेंट डेटा पैकेट्स हैं, ठीक है। एक ही मैसेज है और इसके डिफरेंट डेटा पैकेट्स मिले और डिफरेंट रूट के थ्रू जो है वो होस्ट टू तक पहुंचे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम पैकेट्स डिफरेंट रूट फॉलो करें, हो सकता है वो एक ही रूट से आए, बिकॉज जो राउटर्स हैं जो बीच में मौजूद होते हैं वो शॉर्टेस्ट पाथ को जो है पहले फॉलो करते हैं, लेकिन समटाइम जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसके ऊपर कंजेशन होती है, ट्रैफिक ज़्यादा होती है। देन जो नोड ए है वो ये डिसाइड करती है कि मैंने उसको नोड डी के ज़रिए से सारे पैकेट्स नहीं भेजने, मैंने नोड बी के ज़रिए से कुछ भेजने हैं, मैंने कुछ नोड ई के ज़रिए से भेजने हैं। और इसके अलावा जो नोड ए है ये और भी नेटवर्क्स के साथ कनेक्टेड होता है। लाइक यहाँ पे एक नेटवर्क ये है, एक और नेटवर्क हो सकता है जिसके साथ ये राउटर कनेक्टेड हो।
So this is how a router works, और वो डिफरेंट पाथ या डिफरेंट रूट्स के जरिए से जिसके थ्रू डेटा जो है जल्दी से पहुंच सकता है डेस्टिनेशन तक, उसको फॉलो करके जो है वो डेटा सेंड कर रहा होता है। राउटर्स कैन बी ऑफ टू टाइप। वायरलेस राउटर्स नॉर्मली हम अपने घरों में एक आईएसपी प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू यूज कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास पीटीसीएल का हो सकता है, नाटेल का एक वायरलेस राउटर हो सकता है जो हमारे उस डेटा को देन हमारे कंपनी के राउटर्स तक पहुंचाता है, और वहाँ पे कोई इस तरह का सिस्टम हो सकता है, और वहाँ से वो राउटर्स कोई डिफरेंट पाथ्स चूज करके हमारा वो डेटा जो है वो हमारी डेस्टिनेशन जो कि शहर से बाहर या कंट्री से बाहर होती है वहां तक हमारा वो डेटा जो फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, सो नॉर्मली जो आजकल हम घरों में यूज करते हैं दे आर वायरलेस और स्पेसिफिक वो राउटर्स हैं, ठीक है, कि जो हमारे एक ही यूजर का डेटा जो है वो सेंड कर रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके पास बहुत ही कॉम्प्लेक्स राउटर्स होते हैं जिनकी प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, और जिनके अंदर वो इंस्पेक्शन या एग्जामिन करने का पूरा सिस्टम होता है कि कौन सा डेटा पैकेट कौन से पास से जाएगा, उसकी सोर्स क्या है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है। तो इस तरह से जो है वो ये राउटर्स काम कर रहे होते हैं। वन ऑफ द फेमस कंपनी which is famous or popular for manufacturing routers is Cisco. आप में से कुछ लोगों ने इसका नाम सुना होगा। ये भी सिलिकॉन वैली के अंदर एक कंपनी मौजूद है, और राउटर्स जो हैं बनाने के लिए या उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए ये फेमस है। The next communication device is gateway. Gateway जो है वो routers की तरह दो networks को आपस में connect होता है, but gateway is very good when the two networks which are communicating to each other are of different types. Different types का मतलब ये है कि एक नेटवर्क ऐसा है कि जिसमें हमने इंटेल के कंप्यूटर्स को यूज करके आपस में कनेक्ट किया है। ऑन द अदर हैंड जो रिसीविंग नेटवर्क है कि जिसमें हमारा रिसीवर लोकेट करता है, वो आईबीएम या किसी और कंपनी या मोटोरोला कंपनी या कोई और कंपनी है उसकी जो डिवाइस है, उसका कोई मोबाइल है, उसको वो डेटा रिसीव होना है, या किसी जो एप्पल की फ़ोन की डिवाइस है और उसको वो डेटा रिसीव होना है, तो उस केस में राउटर्स के बजाय जो है वो गेटवे कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। What I'm saying कि when there are two networks and two networks are of two different types, यानी जो उनका जो मेक है वो डिफरेंट, उनके जो ब्रांड्स है वो डिफरेंट है, ठीक है, वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम कर रही हैं, then instead of a router, then there must be some configurations उस डिवाइस की तरह से होंगी कि वो देन गेटवे बन जाएगा। Here's example. Let's see the one network which is working on some standard. वो स्टैंडर्ड जो है वो आईबीएम कंप्यूटर के जरिए से भी आपस में कंप्यूटर्स हो सकते हैं, यानी जो डिवाइसेस हैं वो आईबीएम की हो सकती हैं, वो एप्पल कंपनी की हो सकती हैं। ऑन द अदर हैंड एक और नेटवर्क बनाया है जो एक और कंपनी के कंप्यूटर्स हैं, लाइक नेटवेयर के कंप्यूटर्स हैं, उनका नेटवर्क बना हुआ है, और अगर इन दोनों नेटवर्क्स ने आपस में कम्युनिकेट करना है, यानी जो इस कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर को अगर डेटा सेंड करना है तो देन देयर मस्ट बी अ गेटवे बिटवीन देम, क्योंकि गेटवे की स्पेशलिटी ये है कि वो दो डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। अब गेटवे करता क्या है कि जब भी वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा सेंड करता है या जो डेटा पैक्स वो सेंड करता है, वो जो है वो उनका फॉर्मेट जो है वो चेंज करता है। सिर्फ फॉर्मेट चेंज करने का मतलब ये है कि जो उसका रिसीविंग नेटवर्क है, लेट्स सी वो आईबीएम या एसएनए नेटवर्क है, तो उस पैकेट के ऊपर जो डेस्टिनेशन नेटवर्क है वो एसएनए मेंशन करेगा, ठीक है, और ये बताएगा कि ऐसे नहीं। इसी तरह से हो सकता है कि एक और नेटवर्क भी हो कि जो
किसी और एप्पल कंपनी का हो और जो वहां से डेटा पैकेट आ रहा है वो उसके ऊपर क्या मेंशन करेगा, एप्पल का फ्रेम लगा देगा। इट इज कॉल्ड फ्रेमिंग। ठीक है, जो फ्रेमिंग ये बता रही होती है कि ये डेटा पैकेट किस नेटवर्क से आ रहा है और देन वो डेटा फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, लेकिन वो कभी भी जो अंदर का डेटा है, जो अंदर का कंटेंट है डेटा का, ठीक है, उसको चेंज नहीं करेगा। सिर्फ जो उसका फ्रेम है वो चेक करेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसके ऊपर एक फ्रेम अटैच कर देनी, उस चेक करेगा कि किस नेटवर्क से आया है, उसके ऊपर सिर्फ एक फ्रेम अटैच कर देगा और फ्रेम बताएगा कि ये डेटा किस नेटवर्क या किस टाइप के नेटवर्क से रिसीव हुआ है। Next concept is the difference between server computer and client computer। और इस concept को हम शुरू में data communication में थोड़ा सा discuss कर चुके हैं। There are two types of computers that work on a network. One computer is called server computer and other is called client computer। सर्वर कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर होते हैं जो नॉर्मली अपनी सर्विसेज जो हैं वो शेयर कर रहे होते हैं और जो रिसोर्सेज होती हैं लाइक प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क और प्लॉटर या जो इंटरनेट कनेक्शन होता है वो सर्वर कंप्यूटर के साथ अटैच हुआ होता है, वो उसके ओनर होते हैं। ऑन द अदर हैंड ऐसे कंप्यूटर जो सर्विसेज ले रहे होते हैं सर्वर से, वो क्या कहलाते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर्स कहलाते हैं। ठीक है, फिजिकली भी समटाइम्स ये कंप्यूटर देखने में इससे डिफरेंट होते हैं बिकॉज सर्वर कंप्यूटर्स आर यूजुअली लार्जर इन साइज। और जो आपने क्लासिफिकेशन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स की, तो मेन फ्रेम या मिनी कंप्यूटर्स को यूज करके जो सर्वर कंप्यूटर्स जो है वो डिजाइन किए जाते हैं, या मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एज सर्वर कंप्यूटर्स एक्ट कर रहे होते हैं। दे आर, आपने पढ़ा था, दे आर मोर एक्सपेंसिव। उनकी जो हार्ड डिस्क है वो ज्यादा साइज की होती है, प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा साइज की होती है। दे आर वेरी पावरफुल कंप्यूटर्स। ऑन द अदर हैंड जो नॉर्मली जो हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, जो पीसीज होते हैं, दे वर्क एज क्लाइंट कंप्यूटर्स। इसकी एग्जांपल आप किस तरह से ले सकते हैं कि कोई ऑफिस है और उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, उनके कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये हो सकता है कि उनमें से एक या दो कंप्यूटर्स ऐसे हों जो एज सर्वर एक्ट कर रही हों, वो सर्विसेज दे रही हूँ और वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हों। ऑन द अदर हैंड जो बाकी 22 कंप्यूटर्स हैं वो आम जो है वो माइक्रो कंप्यूटर्स होंगे एंड दे विल बी एक्ट एज client computers, and these computers will be connected to each other using switch or hub, most probably switch, because जो है वो हब इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता, तो हब इतना प्रेफर नहीं किया जाता कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट करने के लिए। और जब उस नेटवर्क से डेटा निकल के किसी और नेटवर्क में जाना है तो देन देयर विल बी अ राउटर, और वो जो राउटर या इंटरनेट कनेक्शन है वो भी सर्वर के साथ ही कनेक्ट होगा। जो तमाम क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं वो जो है स्विच और देन सर्वर के थ्रू जो है वो इंटरनेट कनेक्शन जो है अवेल कर रही होंगे। सो बेसिकली अ कंप्यूटर विच प्रोवाइड सर्विसेज टू द computers is called server computer. On the other hand, the computer which avails or gets or access the resources from the server computer are called client computers. Usually जो server computers होते हैं वो कम होते हैं because they are very expensive, and client computers जो एक network के ऊपर ज़्यादा होते हैं। On the basis of these two types of computers, two types of network architectures can be design or can be built। अब ये जो two types के network architectures हैं ये इन basis पे हैं कि either there are specific client or server concept is implemented or not, or there is no client and server concept is implemented। अब इस नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर जो है वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी आ जाती हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स भी आ जाते हैं, सर्वर्स भी आ जाते हैं, और जो वायर्स हैं इन तमाम का जो कहना चाहिए combination is called network architectures। Basically there are two types of network architectures, client server network and peer to peer network।
In client-server network, each computer either work as server computer or as client computer. It means there is a clear distinguish between server and client computer. A network where some computer will work as server computer and remaining computers will work as client computer. This network architecture is called client server network. It is also called dedicated server network. डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क हम इसको इसलिए कहते हैं कि कुछ कंप्यूटर्स होते हैं जो डेडिकेट हो जाते हैं कि वो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क. क्लाइंट सर्वर हम इसलिए कह रहे हैं कि एक क्लियर डिस्टिंग्विश होती है कि ये कंप्यूटर जो है वो सर्वर है और ये सिर्फ सर्विसेज देगा, और जो बाकी कंप्यूटर्स हैं वो क्या हैं, क्लाइंट्स हैं, वो सर्विसेज लेंगे. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क. इट मींस कि जो सर्वर कंप्यूटर्स हैं दे विल नॉट एक्ट एज क्लाइंट कंप्यूटर्स, और ऑन द अदर हैंड जो क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं वह सर्वर एक्ट नहीं करेंगे. इस तरह के नेटवर्क को क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कहा जाता है. नॉर्मली जो आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या जो बड़ी सेटिंग्स होती हैं जहाँ ज़्यादा कंप्यूटर्स को हमने कनेक्ट करना होता है, तो वहाँ पे एक पावरफुल कंप्यूटर चूँकि ज़रूर होता है, तो इट मीन्स कि वहाँ पे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क या डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर ही इम्प्लीमेंट किया जाता है. एक और एग्जांपल जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की है या डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क की है, that how we are connected to the Google server or to the Facebook server or to the YouTube server. हम जो कि एक क्लाइंट होते हैं किसी एक सर्वर के, और जो हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं या हम जो डेटा सेंड कर रहे होते हैं टू द अदर पर्सन, इट इज ऑलवेज थ्रू अ सर्वर. सो दिस इज आल्सो अ नेट क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर जिसके थ्रू हम इंटरनेट पे डिफरेंट सर्वर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं. If we talk about advantages and disadvantages of client server network, one of the good advantage of client server network that as the server computer is very powerful computer, so it will provide quick access to the resources which are available on the network. क्योंकि सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है, फास्ट कंप्यूटर होता है, तो जब भी कोई क्लाइंट कंप्यूटर किसी प्रिंट की उसको सर्विस चाहिए या उसको कोई फाइल चाहिए किसी यूजर को या कोई और रिक्वेस्ट चाहिए, लॉगिन करना है, तो चूंकि सर्वर कंप्यूटर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है ऐसे नेटवर्क के ऊपर, तो वो क्विकली रिस्पॉन्स करता है रिसोर्स शेयर करने के लिए. सेकेंड एडवांटेज इज दैट चूंकि एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच होती है, as all the computers are connected to a single powerful computer, तो सर्वर कंप्यूटर जब तक रिसोर्स शेयर करने की अथेंटिकेशन नहीं देता है, परमिशन नहीं देता है, कोई भी इलीगल यूजर जो कि अनऑथराइज्ड यूजर कंसिडर किया जाता है, वो एक रिसोर्स यूज नहीं कर सकता. इट मीन्स कि ये नहीं हो सकता कि मैं अपनी कोई डिवाइस लेके जाऊँ, मैं अपना लैपटॉप लेके जाऊँ किसी नेटवर्क के अंदर और मैं जो हूँ वहाँ पे लॉगिन करके मैं एक रिसोर्स यूज कर लूँ. सर्वर के पास चूंकि तमाम कंप्यूटर्स उस नेटवर्क के ऊपर होते हैं, उनके यूजर नेम और पासवर्ड होते हैं, और वही यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो असाइन करता है, यूजर नेम स्पेशली वो असाइन करता है. ठीक है, तो अगर जब भी कोई न्यू यूजर नेम कोई रिसोर्स शेयर करने की कोशिश करेगा तो सर्वर को जो वो डिनाई कर देगा. इट मींस दिस टाइप ऑफ नेटवर्क प्रोवाइड्स अ सेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी mechanism. The next advantage of such type of network is that as one server or two servers are responsible of sharing resources और इसमें क्या होता है कि नॉर्मली कोई भी कंपनी जब इस तरह का नेटवर्क रन कर रही होती है कि जहाँ उन्होंने 25, 30, 50, 100 या 1000 कंप्यूटर्स को आपस में एक सर्वर के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, एक से ज़्यादा सर्वर के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, तो एक पर्सन एज नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जरूर रखती है उस
और वो ही जो है वो तमाम रिसोर्सेज की एलोकेशन को देख रहा होता है. So there is no misconception regarding allocating resources. It means कि एक centralized approach है और जो रिसोर्सेज है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स के दरमियान के प्रिंट की रिक्वेस्ट के लिए क्लाइंट को पता है कि ये वाला सर्वर है और मैंने इसको रिक्वेस्ट करना है प्रिंट के लिए कि इसके थ्रू प्रिंट आउट निकलेगा. इंटरनेट कनेक्शन के लिए एक सर्वर है, या जो फाइल शेयरिंग है, जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसके लिए एक सर्वर है. ठीक है. As the resources are not distributed among all the computers, तो जो एक्सेस करना है रिसोर्सेज को इट इज वेरी इजी एज कम्पेयर टू peer नेटवर्क, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. ऑन द अदर हैंड such type of networks are very expensive as the server computer is involved, और सर्वर कंप्यूटर की जो कॉस्ट है वो इस नेटवर्क की ओवरऑल कॉस्ट को जो है वो ज्यादा कर देती है. ऑन द अदर हैंड अगर जो है वो सर्वर कंप्यूटर जो है वो टाइम बीइंग किसी वजह से जो शट डाउन हो जाए या उसमें कोई खराबी आ जाए, then all the network or all the resources which are attached to that server will be suffer. जैसे कि sometime हम नेट के ऊपर जो है वो गूगल सर्वर को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो सर्वर फॉर टाइमिंग रीस्टार्ट हो रहा होता है या उसके अंदर कोई कनेक्शन का प्रॉब्लम होता है, तो हम उससे या अब वो हमें जो है वो सर्विसेज, वो गूगल सर्वर या वो यूट्यूब सर्वर वो सर्विसेज हमें प्रोवाइड नहीं कर पाता उस टाइम पीरियड के लिए जितनी देर के लिए वो रीस्टार्ट हुए हैं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हुआ है. और एंड दीज सर्वर हैव टू टर्न ऑन 24 आवर्स in a day. The next type of network architecture that a company can make or adopt is peer-to-peer network. Peer-to-peer network में क्या होता है? There is no specific client and there is no specific server or client concept. It means कोई एक कंप्यूटर एक वक्त में सर्वर भी हो सकता है और क्लाइंट भी हो सकता है, और ऐसे नेटवर्क को हम क्या कह रहे होते हैं? पीयर टू पीयर. एंड ईच कंप्यूटर विल बी कॉल्ड एज पीयर और साथी. Right? In this network, no clear distinguish between client and server. कुछ कंप्यूटर एज सर्वर ही एक्ट करेंगे और कुछ एज क्लाइंट ही होंगे, ऐसा नहीं होगा जैसे कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर होता है. ठीक है. यहाँ पे अगर एक कंप्यूटर है वो उसके साथ इंटरनेट कनेक्शन की रिसोर्स लगी हुई है और कंप्यूटर ए को वो रिसोर्स चाहिए, ऑन द अदर हैंड ये हो सकता है कंप्यूटर ए के पास जो प्रिंट की रिसोर्स मौजूद हो, तो जब कंप्यूटर बी को वो चाहिए होगी उस केस में कंप्यूटर ए सर्वर बन जाएगा और कंप्यूटर बी क्या बन जाएगा? क्लाइंट बन जाएगा. लेकिन जब कंप्यूटर ए को इसके थ्रू जो है कोई सॉफ्टवेयर चाहिए या कोई फाइल चाहिए या इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, उस केस में बी विल बी सर्वर एंड ए विल बी क्लाइंट. इट मींस देयर इज नो क्लियर डिस्टिंग्विश बिटवीन client and server computer on this network, and such type of network is called peer-to-peer network. Right. On peer-to-peer network, resources are distributed between different computers on a network. For example, एक ऐसा कंप्यूटर हो सकता है जिसके साथ प्रिंटर अटैच कर दिया जाए, एक ऐसा कंप्यूटर होगा जिसके अंदर जो है वो सारी फाइल्स पड़ी होंगी, चाहे वो प्रोग्राम्स की फाइल्स हैं या जो डेटा की फाइल्स हैं. एक कंप्यूटर ऐसा होगा जो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होगा कि इस नेटवर्क के ऊपर जब भी कोई कंप्यूटर आएगा, ये कंप्यूटर जो है वो ऑथेंटिकेट करेगा कि either remaining computer like A or B are part of this network or not. So C computer will be used to authenticate the resource or to authenticate the user जब भी वो login करेगा. So in this way, this network will work and there is no specific server computer कि जो इसके साथ हम ये तमाम जो है वो resources attach कर देंगे. If we talk about advantages and disadvantages of peer-to-peer network, peer-to-peer networks are good choice for small setups कि जहाँ पे हमने जो है 2, 3, 5,
एट मोस्ट 10 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना हो, उस किस्म की, और हम जो है एक एक्सपेंसिव सर्वर कोई कंपनी जो है वो बाय करके उसको अफोर्ड या मैनेज ना कर सकती हो, तो वहाँ पे ये अप्रोच अच्छी है। लेकिन जहाँ पे भी ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है और एक बहुत ही मैनेज फॉर्म में नेटवर्क को चलाना है, तो वहाँ पे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क अप्रोच ही अडॉप्ट करनी पड़ेगी। The second advantage is that as this network is usually a small network, जहाँ पे बहुत कम computers होते हैं, तो इसको manage करना क्या होता है, इस लिहाज से easy होता है, and it is less expensive as compared to client server network. On the other hand, the drawbacks or disadvantages is that as the resources are distributed among many computers and there is no specific server और अ मेन कंप्यूटर की जो तमाम या एक से ज़्यादा सर्वर के जो रिसोर्सेज को जो शेयर कर रहे हैं, उनके साथ रिसोर्सेज जो है अटैच हुई हैं और वो उनको शेयर कर रहे हैं, तो कंप्यूटर्स के लिए जो है रिसोर्स को लोकेट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि ये रिसोर्स कौन से कंप्यूटर के पास है। हो सकता है कि 10 कंप्यूटर हो, 10 में से 3-4 के पास या 4-5 के पास डिफरेंट रिसोर्सेज हों, ये इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं। आम कंप्यूटर्स को ही हम कोई एक रिसोर्स दे देते हैं कि हम इनको ज़्यादा रिसोर्सेज जो है इनके साथ अटैच कर सकें, तो 10 से ज़्यादा जब यहाँ 10 कंप्यूटर्स जाते हैं तो उनको रिसोर्स जो है लोकेट करने में मुश्किल हो रही होती है। सेकेंडली, हम इसको यूज़ करके बड़ा नेटवर्क नहीं बना सकते, और अगर हम एक बड़ा नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं विदाउट सर्वर अप्रोच, विदाउट क्लाइंट सर्वर अप्रोच, तो जो डेटा एक्सेस है या जो स्पीड है इट विल बी स्लो डाउन। जबकि हमने देखा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में जो सर्वर कंप्यूटर एक फास्ट पावरफुल कंप्यूटर होता है, तो जो एक्सेस करने की जो स्पीड है और जो सर्विस प्रोवाइड करने की या रिसोर्स प्रोवाइड करने की जो स्पीड है वो बहुत अच्छी है। लेकिन क्लाइंट पीयर टू पीयर नेटवर्क में जब हम एक बड़ा नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं, जो डेटा शेयरिंग है वो क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। ऑन द अदर हैंड जो है एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, जो एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल नहीं होता है, डिफरेंट कंप्यूटर्स जो है वो रिसोर्सेज को शेयर कर रहे होते हैं, तो जो मैनेज करना है, स्पेशली अगर वो बड़ा नेटवर्क बना लेता है, इवन 10 कंप्यूटर्स का भी जो नेटवर्क है या 12 कंप्यूटर्स का भी नेटवर्क है वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। Some companies यूज हाइब्रिड अप्रोच। इट मीन्स कि कुछ उनके कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, जैसे उनके डीन्स के या उनके डायरेक्टर्स के कंप्यूटर्स हैं वो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, यानी उसके हर डायरेक्टर के अंदर जो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं वो जो है क्लाइंट सर्वर अप्रोच फॉलो कर रहे होते हैं। तो हाइब्रिड अप्रोच भी जो है वो बनाई जा सकती है बाय मिक्सिंग द peer-to-peer network and client-server network, but usually जो most common network architectures adopt किया जाता है, that is especially बड़ी companies के अंदर, that is client-server network model. That's all from today's lecture. आपके लिए assignment के लिए 2 क्वेश्चन हैं. First is that you have to differentiate between client computer and server computer. You can list down 3 points for each type of computer. Then you have to differentiate between client server network and peer-to-peer network. You can distinguish between them on the basis of their advantages and disadvantages, or on the basis of their layout or design. That's all from today's lecture. I hope you have got the concept of communication devices and different network architectures.